कोई शक नहीं, जिंदगी गुलजार है और गुलजार एक विस्तार का नाम है। गुलजार जैसे विस्तार को थोड़ा समेट कर समझने के लिए यहाँ हमारे साथ हैं यतीम मिश्रा जी, सत्यसरण जी, और ये बात चलेगी कनक रेखा चौहान जी के साथ। तालियां आप बजा सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मंजुला। साहित्य और संवेदना की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जिनके कहने से ही लगता है कि एक महोत्सव हो रहा है, और आज इस विशेष सचमुच जिनकी बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही रचनाकार हैं। हम उनकी रचनाओं और उनका जश्न मना रहे हैं। मेरे साथ आज जो दो लोग बैठे हैं, उन्होंने गुलजार साहब के साथ बहुत वक्त बिताया है। सत्या जी ने उनकी उर्दू की कविताओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का बीड़ा उठाया था और उठाया है। उनकी किताब यहाँ है हमारे पास। और मेरे साथ बाईं तरफ जतेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं। इन्होंने तो बहुत समय बिताया गुलजार साहब के साथ, उनकी पूरी बायोग्राफी लिखी है। तो आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। माई बुक्स आर देयर, गेट माई बुक्स प्लीज ऑन द टेबल। हम ही भूल गए। Thank you so much. So this is Caged. This is translated by Satya ji. We are going to ask her, how could she translate something which is totally untranslatable? The Gulzar Saab's subtleties, his pauses, his silences. It is not just a translation, it is listening to his nuances, listening to his dhundalka. कैसे उन्होंने उसको translate किया. The book is basically about a lot of people who have impacted Gulzar Saab's life. So उन्होंने जो उर्दू में लिखा, आपने हिंदी में लिखा, उसको आपने translate किया. It's a very fine, delicate bridge between the poet and his poetry and his translator. और ये किताब है गुलजार साहब की, हजार राहें मुड़ के देखी. इसका नाम यतेंद्र जी ने शायद गुलजार साहब से डिस्कस करके लिखा होगा कि ये नाम है, उनकी पूरी बायोग्राफी है. So my first question, sorry. No, I won't ask you the question. So the title of this book is Caged. It's a very striking title. So what is caged here? Is it the bird? Is it the emotion? Is it the poet? Or is it the poet himself? Please tell us something about the title and what is the book about? Well, caged is, according to Gulzar Sahab, he has caged the memories of people whom he admires or whom he has worked with. Okay. Well, Gulzar Sahab says that caged is about people whom he admires, whom he has caged in his memories, and who he has then brought onto the written page so that other people can share, can open the cage and let those memories fly into their lives. So that's exactly what Caged is about. Thank you. And tell us about the book. Is it only about certain people who were close to him, or there were people who are not there anymore? What is it about? Who has it written Well, about? it's in a couple of sections, Kanak. There are sections about people he's worked with who influenced him. So there's Tagore, there is Bimal Roy, with whom he started his career and whom he assisted later, and with whom he became a lyricist thanks to Bimal Roy and S.D. Burman. There are others like Mehdi Hassan, whom he respects. But there are also very unusual names in here. There's Shakespeare. There's Vincent van Gogh. He writes a letter as Vincent van Gogh to the world, saying that this is what I was and this is what you didn't see. So he writes a letter to his brother explaining himself. And there's Neil Armstrong. And then there is his family. There are very, very beautiful poems on his daughter giving birth. And how a father looks at his daughter giving birth. You know, what happens when you undergo the pain of your daughter's pain. It's a very, very moving poem. He talks to his father, and that's a very, very sweet poem where he says, I'm as old today as you were when you told me give up this nonsense about writing poetry. But I'm still writing poetry.
So I think there are some very sweet poems there of all kinds. एक खत अब्बू के नाम, आई थिंक दैट इज द पोएम. सो यतिन जी, यही सवाल आपसे पूछेंगे कि गुलजार साहब को लिखना है आपको, उनके बारे में उनकी पूरी जीवनी लिखनी है, इसका बीज कैसे पड़ा? कौन सा ऐसा क्षण था जो आपको लगा या उसने मोटिवेट किया कि उनके सफर को दर्ज करना है? मेरा बड़ा एक अजीब सा तजुर्बा रहा गुलजार साहब के साथ. 2003 में मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा. 2003 में साहित्य अकेडमी का एक डेलीगेशन गया न्यूयॉर्क, जयप्रकाश नारायण सेंटेनरी सेलिब्रेशन, और उसमें गुलजार साहब, निदा फाजली, जावेद अख्तर, बशीर बद्र, मनोहर श्याम जोशी, निर्मल वर्मा, ये सारे डेलीगेट थे और सबसे यंगेस्ट मेरा चुनाव हुआ था. तो मैं उसमें सबसे पीछे पीछे, मेरी उम्र उस समय 20-22 साल थी, तो मैं बहुत डर डर के सहम सहम के गुलजार साहब के पीछे पीछे, मतलब दूर रहता था, सबसे कटा हुआ. और निर्मल वर्मा मेरे मेंटोर थे, तो मैं उनके साथ चिपका रहता था. एक दिन गुलजार साहब ने मेरे कमरे के डोर पे नॉक किया और मेरे साथ विश्वनाथ सचदेव, जो नवनीत के एडिटर हैं, वो उनके फ्रेंड थे, वो उनको बुलाने के लिए आए और उन्होंने कहा कि नवनीत आओ, चले नीचे वॉक करके आते हैं. तो जाने लगे. तो तब तक मैंने नमस्कार किया. तो बोले, बरखुरदार आप बहुत चुप चुप हैं, सबसे यंग हैं और सबसे संजीदा क्यों दिख रहे हैं? तो मैंने कहा, भाई मुझे बहुत डर लगता है आपसे, आप गुलजार साहब हैं और आप कहाँ मेरी कदर करेंगे. तो बोले, नहीं नहीं, आप तो बरखुरदार बड़े खूबसूरत है और ये है और वो है. तो मैंने थोड़ा सा लिबर्टी ली और मैंने कहा कि लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि आप मुझे अपनी फिल्मों में रोल देने वाले हैं. तो गुलजार साहब को मेरे बारे में किसी ने बता दिया था कि किस फैमिली बैकग्राउंड से आता है, क्या है. तो उन्होंने मजाक में ही कहा कि नहीं, अगर आपके अब्बू पैसा लगाएं तो मैं अब फिल्म बना सकता हूं. तो ऐसे एक हंसी मजाक हुआ और उनके साथ हम लोग टहले, चाय कॉफी भी, बहुत अच्छा यात्रा रही. और फिर उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया बॉम्बे का कि ये नंबर है, बम्बई कभी आओ तो मुझसे मिलना. बड़े आदमी ने अपना नंबर दे दिया तो इसका मतलब थोड़ी कि आप चेप हो जाएंगे और आप तुरंत दूसरे दिन मुंबई पहुंच जाएंगे. बात आई गई हो गई, बात खत्म हो गई. 2005 में मुझे पोएट्री का एक अवार्ड मिला, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, जो कि बहुत रिकॉग्नाइज पुरस्कार एक जमाने में माना जाता था. तो मैं साहित्य अकेडमी के प्रोग्राम में गया और अवार्ड लेने गया. तो मैं जिस होटल में रुका था, जिस वहाँ क्लब में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, मैं जब अवार्ड लेके लौटा तो एक मैसेज मेरे नाम पे था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हेन यू आर फ्री प्लीज कॉल गुलजार, और फोन नंबर. तो उन्होंने कहा कि ये नंबर है. तो मैंने कहा, गुलजार साहब का नंबर मेरे लिए? तो रात हो गई थी, मैंने दूसरे दिन मिलाया. तो उन्होंने कहा, देखिए बरखुरदार, आप तो मुझे भूल गए, 2 साल हो गया, लेकिन मैं जो है आपको नहीं भूला. और मुझे जब नारंग साहब ने इनवाइट भेजा कि 3 रुपये अवार्ड मिला, तो मुझे लगा मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए. आपका नंबर नहीं था तो मुझे पता लगा कि आप दिल्ली में हैं, तो मैंने मतलब उन्होंने इतना एफर्ट लेके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया. ये बात मेरे पिताजी को बड़ी अच्छी लगी. तो उन्होंने कहा, कोई इतना बड़ा आदमी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और तुमको वहां मिला है, तो तुम जाओ, जो है एक बार बंबई मिल के आओ. तो मेरे फादर के मोटिवेशन से फिर मैंने हिम्मत की, मैं बॉम्बे गया. गुलजार साहब बहुत प्यार से मिले, अपनी किताबें दी. मैं, सारे लोग गुलजार साहब के एक जमाने में फैन होते हैं, खास करके फिल्मों के, गीतों के, तो मैं वो था. फिर धीरे धीरे उनसे वक्फा बढ़ा, दोस्ती हुई. तो मैंने उनका एक मजमुआ एडिट किया वाणी प्रकाशन के लिए, यार चुलाहे, और वो बहुत पसंद किया गया. उसका उर्दू ट्रांसलेशन किया शीन काफ निजाम साहब ने. फिर उन्होंने कहा कि तुम ही मेरे फिल्म गीतों का भी बनाओ. और फिर मैंने मीलों से दिन एडिट किया, तो फिर उसका पाकिस्तान से ट्रांसलेशन प्रकाशित हुआ, संगे मील ने प्रकाशित किया. इस दौरान मैं उनका इतना मुंह लगा हो गया था कि मैं उनके हर छोटी बड़ी बात को रिकॉर्ड करता था. मैं अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर रखता था और जो भी वो बोलते थे ऐसे ही रैंडमली सब रिकॉर्ड करता था. तो एक दिन उनकी इजाजत से, तो उनसे एक दिन पूछा उन्होंने कहा, तुम ये सब क्या करते हो बकवास? मैंने कहा, आप इतनी इतनी बातें करते हैं, कभी तब्बू बैठी हुई है, कभी कोई बैठा है, कभी विशाल भारद्वाज बैठे हैं, कभी आपका कोई फ्रेंड बैठा है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसको सबको कर लेना चाहिए. तो बोले, अच्छा, आर यू सीरियस? मैंने कहा हाँ. तो बोले, आप मेरे ऊपर कोई किताब क्यों नहीं लिखते हैं? फिर कि गुलजार साहब की तरफ से ऑफर आया. तो मैंने कहा, सर मैं लिखना शुरू करता हूं. तो मैंने कहा, फिर मैं एक शर्त है कि मैं फिर सवाल करूंगा आपसे और फिर वो करूंगा. अच्छा, इस दौरान लता मंगेशकर वाली किताब चल रही थी. तो मैंने सबसे पहले, तो उन्होंने कहा सवाल क्या होंगे? मैंने कहा, सवाल सिनेमा के तो नहीं होंगे, सवाल जिंदगी के होंगे.
तो मैंने उनका पार्टीशन, उनका किस तरह से दीना छूटा और उनकी सौतेली माँ का व्यवहार, सारी चीजें सत्या जी डिटेल में जानती हैं जिन्होंने किताब पढ़ा हुआ है। तो वो फिर बहुत मुतासिर हुए और वो फिर जुड़ते चले गए। फिर एक दिन ऐसा आया 3-4 साल इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के बाद कि तुम बायोग्राफी करो, क्योंकि तुमने तो वो सब पूछ लिया है जो मुझसे मेरे साथ के कलीग्स ने नहीं पूछा, जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आते हैं, तो कोई फिल्म गीत की बात करता है, कोई अपना प्रोजेक्ट लेके आता है, कोई नाटक कर रहा होता है। लेकिन तुम तो मेरे सौतेली माँ के बारे में पूछ गए, तुमने मेरी दादी की मृत्यु भी पूछ ली, तुमने मेरा बचपन भी पूछ लिया। तो अब पूछ नहीं लिया, वो इतना समय मैं उनके साथ बिताता था कि वो सब बताते चले गए। तो इस तरह से ये बायोग्राफी मुकम्मल हुई। तो सवाल पूछने वाले को भी वो तहजीब तमीज होनी चाहिए। तो ये मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आज आपने डाल दी इस बात को कह के। और खैर वो तो गुलजार साहब हैं, डॉक्टर शशि थरूर कहते हैं दैट ही इज द नेशनल ट्रेजर एंड वी हैव टू प्रिजर्व हिम एज सच, तो वी कैन नॉट टेक एनी लिबर्टीज। सो ऑन दैट सेम टोन आई वांट टू आस्क यू कि उनकी जो संवेदनाएं हैं, जो धुंधलके हैं, जो बारिशें हैं, उन सबको आपने कैसे दर्ज किया है? क्योंकि वो उनको जैसे जिंदगी जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, वो वहीं पर कविता को छोड़ देते हैं। अब आप समझिए कौन सा दर्द है वो, ना? या फिर एक और गाना उनका है जिसमें कि वो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। एक बड़ी लंबी फहरिस्त है उस सामान की, क्या क्या छोड़ दिया गया। हर आदमी उसे अपने परसेप्शन से सोचता है। हाउ कुड यू गैदर दैट एंड पुट इट इन योर बुक? मुझे लगता है कि थोड़ा सा पोएटिक सेंस है मेरे अंदर, या सेंसिबिलिटी जो भी कह लें। मैंने ये समझने की कोशिश की, जितनी भी मैंने बायोग्राफीज की, सबसे पहले तो मैंने एक काम किया कि मैंने प्राइमरी सोर्सेज पे जाके काम किया, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बात की। कभी मैंने ये नहीं किया कि मैंने यहाँ से वहाँ से गूगल से और सर्च इंजन से और इनकी किताब, क्योंकि हर आदमी का अपना एक परसेप्शन होता है और कोई अपने परसेप्शन में कंप्लीट नहीं होता। तो जैसे मैं जब पोइट्री पे, मेरे साथ अच्छी बात ये हुई कि मैंने पहले पोइट्री की, फिर फिल्म सॉन्ग का काम किया। तो जैसे इनकी एक कविता है, आदमी बुलबुला है पानी का, लेकिन अभी मिटता है अभी बनता है, और सेम चीज वो कह रहे हैं गाने में जाके, आने वाला पल जाने वाला है। या एक भमीरी अब भी नाचा करती है, एक गली अभी भी दिमाग में घूमा करती है, जब वो बहन का साथ छूटता है पार्टीशन में, छोड़ आए हम वो गलियां आते हैं। या माँ का चेहरा नहीं देखा है उन्होंने, उनका एक सबसे बड़ा जीवन का रिग्रेट है कि उनको अपनी माँ की कोई तस्वीर नहीं है उनके सामने। तो नरम गरम में वो गाना आता है कि मेरे चेहरे में छिपा है मेरी माँ का चेहरा। तो जो बात है वो कहीं अंदर से ही आती है, वो अपनी जिंदगी से ही निकल के आती है। ये चीज मैंने पकड़ने की कोशिश की कि वो इंटरमिक्सिंग, अमलगमेशन ऑफ आर्ट्स या म्यूजिक या पोएट्री का कैसे हो रहा है। फिर गुलजार साहब एक तरीके से फिलोसॉफिकल ढंग से लिखते हैं, जिसपे बहुत उर्दू और हिंदी में इल्जाम भी लगता है कि साहब आपने सेंसेस ऑफ जो वो है, जो मीडियम है, तो उनको मर्ज कर दिया है। कि साहब हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, आंख महक रही है, पसीना बोल रहा है, पानी जो है बात कर रहा है। तो जो एक काफ्कास्की पैटर्न है, जो एक फिलोसफी ऑफ आर्ट है, उसमें गुलजार साहब रमण करते हैं। फिर एक चीज मैंने पकड़ने की कोशिश की कि उनका घर कभी आबाद नहीं हुआ। जब पिता थे तो 2 शादियां थीं, और जो है एक माँ ने उनके साथ अन्याय किया, उनको इस चक्कर में कि उनको एक कोई दिक्कत ना आने पाए, उनको दिल्ली भेज दिया गया रोशन आरा बाग में। माँ जब दही बिलोती थी, और इनकी ड्यूटी लगती थी दही बिलोने में, पंजाबी लोग जानते हैं कि कैसे बिलोते हैं, तो मक्खन नहीं देती थी खाने को, इनको छाछ मिलता था। तो उनको ये रिग्रेट है मन में। तो वो चीज मैंने देखी। फिर वहां पे जाकर के स्टोर रूम में रहना पड़ता था। फिर बाद में जब शादी हुई, वो शादी सफल नहीं हुई। तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि इनकी सारी फिल्मों में डिलेपिडेटेड हाउस हैं। आप देख लें, उठा करके आंधी देख लें, मौसम देख लें, नमकीन देख लें, इजाजत देख लें, कोई फिल्म जो गुलजार ने बनाई है उसमें मुकम्मल घर नहीं है। घर टूटता हुआ है, या घर की एक छवि है, घर का एक रूइन होता हुआ एस्पेक्ट है। तो मैंने डरते डरते गुलजार साहब से कहा, मैंने कहा आपका घर सफल नहीं हुआ, आपका घर नहीं बसा, ना माता पिता का ना आपका, तो ये आप दिखा रहे हैं
तो बोले तुमने बहुत सही चीज पकड़ी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने एक बहुत मार्मिक प्रसंग बताया जो किताब से हटवा दिया उन्होंने, कि उनकी दादी बीमार थी और वो डेथ बेड पे थी और ये था कि आज या कल प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने अपने पंजाबी में अपने उससे कहा, वो दुकान में जो बैठता था, क्योंकि कपड़े की दुकान थी, आढ़त थी दीना में, कि लट्ठा कोरा लाए नहीं, कोरा लट्ठा ले आओ, कफन की जरूरत पड़ेगी। इतनी बात हुई तो इनको ये समझ में आ गया कि दादी की मृत्यु होने वाली है। तो किस तरह से वो टूटे घर से, किस तरह से वो चीजें हुई। और मुझे लगता है गुलजार होने की जो सबसे बड़ी कैफियत है वो ये है कि उन्होंने अपने सारे टूटन से, सारे घुटन से, सारे जो डेकोटोमी ऑफ लाइफ है उससे ताकत हासिल की और उसको उन्होंने जिंदगी के लिए प्यार बना के परोस दिया। गुलजार साहब ने कभी वो इश्को बुलबुल और वो गुल गुलफाम और उस तरह की पोइट्री नहीं की है। गुलजार साहब ये लिखते हैं कि कहने वाले का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। या एक अकेला इस शहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। तो आप उस कैफियत को पकड़ने की कोशिश करिए कि वो एक शायर का गीत है, वो एक शायर, एक ऐसे टूटे हुए इंसान की बात है जिसने अपना घर एक यूटोपिया में, जिसने एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट किया पोएट्री में, जिसने एक पैरेलल वर्ल्ड, एक साफ सुथरा समाज, एक संसार, एक घर बसाया अपने साहित्य में, क्योंकि जिंदगी में उसमें बहुत दर्द मिला था। उस दर्द की तकलीफें उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं की अपनी पोएट्री में उस तरीके से कि आप टूट जाएं, आप मजनू बन जाएं। उन्होंने नमकीन जैसी फिल्म में भी सारा कष्ट दिखाते हुए बाद में घर बसाया है शर्मिला टैगोर का। इजाजत में भी वो काम किया है, आंधी में भी वो काम किया है। तो मुझे लगता है कि गुलजार होने की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है या जिसको पकड़ने की बात है वो ये है कि एक आज भगवान उनको 100 बरस की उम्र में 92 साल के हो रहे हैं, उन्होंने अपनी तकलीफों से, अपने दुत्कारे जाने से, अपने कष्ट से, अपने माँ को ना देख पाने से, अपने जीवन की तमाम आपाधापी और कष्टों से निजात पा करके वो राहत के पल सुलभ कर आए हैं, लेकिन पैर जमीन पे रहे हैं। उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की है। समझो कि ये कष्ट है, ये आएगा, और फिर वो जो जैसा कहते हैं कि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो है जाने वाला है। मुझे लगता है यही फिलॉसफी है गुलजार की। Satyaji would agree. So, Satyaji, I believe, and I suppose everybody believes, that his poetry is untranslatable. The subtleties that he uses, the half-spoken verses, the unfinished pauses, the sighs, the shadows. So how did you preserve this space, this unspoken space in his poetry? Actually, I had the misfortune, you can say, of learning to swim from the deep end. You know, there was no holding me by the hand and saying, पैर पहले पानी में डालो, फिर देखो थोड़ा सा अंदर जाओ, देखो क्या होता है अगर मुंह पानी में डालोगे तो. No, I was just thrown into the deep end thanks to both Yatindra Mishra and Gulzar Sahab, because his book was not equally easy to do. It was एक बात मैं इंटरप्ट करूंगा कि मुझे इतनी खुशी हुई, इसलिए नहीं कि ये सामने बैठी हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से फेमिना की सत्या सरन को जानते चले आए, द ग्लैमरस सत्या सरन। तो जब असत्या जी का बहुत प्यार रहा मेरे से, हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल में, पहली बार हम लोग बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में मिले थे, और बहुत मजेदार किस्सा है कि मैं और सत्या जी को भूल गया होगा, मैं और सत्या जी कॉफी लाउंज में बैठे हुए थे और एक अभिनेत्री बैठी हुई थी पोनी टेल किए हुए और बहुत बिना मेकअप के, और उनको 4 बाउंसर ने घेर रखा था और सब ऑटोग्राफ ले रहे, और मैं इनसे कह रहा हूँ कि ये कौन है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। लिटरली मैं उस दिन ऑफ था। तो कहती तुम्हारा दिमाग खराब है, पहचान नहीं रहे कौन हीरोइन है? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। बोली ये तो रानी मुखर्जी बैठी हुई है। अरे हमने कहा गलती हो गई महाराज, ये स्क्रीन पे और ऐसे तो रानी मुखर्जी समझ में नहीं आ रही। तो सत्या जी से दोस्ती हुई। जब किताब तैयार हुई तो सत्या जी ने कहा कि यतीन्द्र, मैं इसका अनुवाद करना चाहूंगी, क्योंकि मैं गुलजार साहब के बहुत करीब हूँ और मैं तुम्हारा काम बहुत पसंद करती हूँ। तो जब इन्होंने एक्सेप्ट किया तो मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात थी, इतना बड़ा चैलेंज था।
और उस दौरान कुछ ऐसी स्थितियां थी कि मेरी मदर बीमार थी, मेरे फादर बीमार थे, मैं हॉस्पिटल इन एंड आउट और सब होता था। इन्होंने बड़ी पेशेंटली मेरे साथ काम किया, मुझे पूछती रहती थी, मुझे बताती रहती थी, उसकी पैराफ्रेजिंग करने में, उसकी सारी चीज़ों में। तो जो अंग्रेजी में अनुवाद आया है, जो उसको पूरा जो इसका एक वाइडर ऑडियंस में गया है, दिस इज ऑल क्रेडिट गोज टू सत्या सरन। और मैं इस बात के लिए बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि सत्या जी ने किताब छुई, और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि मेरी सारी किताबें महिलाओं ने ट्रांसलेट की। लता मंगेशकर को इरा पांडे ने किया, गुलजार साहब को सत्या सरन ने किया, अख्तरी को मनीषा तनेजा ने किया, गिरजा को मधुरी जोशी ने किया। तो हिंदुस्तान की जो सारी बड़ी ट्रांसलेटर थी, सारी महिलाएं, उन लोगों ने मेरा काम को छुआ। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और सत्या जी के लिए बहुत सलाम पेश करता हूँ। Satyaji, as we all, great writer, storyteller, and editor of 12 years, right? So, I have to come back to your question. yes, I was wondering where, Yeah, Yeah. so the question was, about the unspoken about space, translating, the yeah. size and shadows, how it in your poetry? I think, you know, the fact that Gulzar Sahab, when he writes with a great amount of uniqueness. I mean, everyone will agree that nobody really writes like Gulzar Sahab does. And that's what we find fascinating about him. But I have been meeting Gulzar Sahab from the time I was a young journalist. I have gone and interviewed him many times on many things, all chota chota, and I've always found in him a gentleness. So I was not afraid. I was not afraid. I knew that if I made a mistake, I could go to him. If I had a doubt, I could go to him. But I said, let me try. Let me try. And I tell you, the first poem, I sat down with great, you know, enthusiasm. Or I think after 4 hours, I told my husband, pata nahi main kya kar rahi hu. Ek line nahi kar pai. I hadn't even translated the first line, let alone the whole poem. So it was like, this is my death warrant. I'm not going to be able to do this book. But then I am a very persistent creature. So I continued, and I think after the first 5 poems, I sent him the poems. And he called back. He immediately called back and he said, he calls me Bachchu for some reason. He doesn't know my real age. So he said, Bachchu, इसमें 3 ठीक है, एक में बहुत थोड़ा सा काम करना है. थोड़ा मतलब I needed to rewrite the whole poem. But that is the gentleness of him, that he doesn't scare you. So when I went, that was a poem on Salil, I don't remember on who, but he said ki jo hai, you have written as if he is sleeping. It says the book is open on its face, let it lie. And at the end of it, he says ki the sun came and tried to wake him. The wind knocked at the window, but he didn't get up because he was sleeping. But उस किताब को वहीं रहने दो, शायद वो उठ के फिर से पढ़ने लगे. You know? So this was the poem. And he said, तुमने उनको सुला दिया, मैंने तो, I have written it after he's passed away. तो उससे पूरा perspective बदल गया. So the poem changed completely. So I think there were trial and errors, but there were also the very determined me who said I will get under the skin of this poet. So the thing is, English is a very direct language. You say I want water. In Hindi or Urdu we say gala khushk, प्यास लगती है. So that what is wrong with the mic? ठीक कीजिए, इससे क्या बात है? सुबह से गड़बड़ हो रहा है. So translating him into something in a very direct language like English must have been a mammoth work for you. So for example, I want to read the Hindi version, the Gulzar Sahab's original version, about Jagjit Singh. जब उनके बेटे की मौत हो गई अचानक, यंग बेटा किसी बाप का चला जाए, बहुत अरसा लगा जगजीत साहब को उससे उबरने के लिए. वो उन्होंने लिखा है, वो मैं पढ़ूंगी और सत्या जी आपसे गुजारिश है आप अपना इंग्लिश वर्जन पढ़िएगा. जाने कैसी सर्दी आके बैठ गई थी, जम गई थे उसके सीने में,
गजल की कांगड़ी जला के पहन लेता था, बेटे को जला के लौटा था, झील के किनारे बैठकर ठेकरियां पानी की सतह पे फेंकता था, घोड़े देखता था दौड़ते हुए, सर्दी में ठिठुरने लगता था कभी, छदरी छदरी धूप ओढ़ लेता था। अब छदरी छदरी पंजाबी है यहाँ पर। छदरी छदरी धूप ओढ़ लेता था। कल सुना है बर्फ गिर रही थी जब पहाड़ों पर, खिड़की खोलकर वो आग तापने चला गया चिता की आग पर। It is, I mean, it moved me so much. और ये गुलजार साहब ने लिखा है जगजीत जी के लिए। सत्या? Well, I don't know whether it matches up, but this was my effort. Jagjit Singh, an elegy. A strange chill had arrived and settled like a lump in his heart. He would set alight a kangri of ghazals and warm himself. When he returned after lighting his son's prayer, he skipped stones across the water, watched them like horses running. He would start to shiver in the cold and shroud himself in sunlight. I heard that when the snow fell yesterday on the mountains, he opened his window and went to warm himself on the fire of a burning pyre. Thank you. So, isn't it as good as Gulzar Sahab, if we can say that? No way. It's a good effort. जी. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये हमेशा एज ए राइटर महसूस करता हूँ, पता नहीं आप लोग पाठक के तौर पर कैसा सोचते हैं। ट्रांसलेटर को, जो अनुवादक है, उसको हमेशा हम एक छोटे लेवल पे रखते हैं, सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट में जो ख्याल गायक है उसके साथ बैठ के जो तानपुरा बजा रहा है वो उसमें आवाज़ मिला रहा है, जब वो थकने लगता है तो वो उसमें आवाज़ मिलाता है और कहीं ना कहीं उसे ताकत देता है। लेकिन ट्रांसलेशन कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होता, हमेशा वो रिक्रिएशन होता है। ऑथर को समझते हुए जब भी ट्रांसलेटर उसकी आत्मा में उतरता है तो वो खुद अपना भी वजूद उसमें डालता है, बिना उसके ट्रांसलिट्रेशन रह जाएगा। एक साहित्य का एक सिद्धांत है, राजशेखर ने कहा था, स्वीकरण एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि रियल मिरर इमेज बनाना, या जिसे हम ज्यादा उसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में कहें तो परकाया प्रवेश। जब मैं अपनी किताब का ट्रांसलेशन पढ़ रहा था सत्या जी का, तो मुझे लग रहा था ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे काम तो है, लेकिन इस काम के इथॉस को लेकर के इन्होंने एक बहुत सुंदर चीज गढ़ दी है। तो मुझे तो लगता है पहली बात तो ट्रांसलेटर को ये कहना नहीं चाहिए कि मैंने प्रयास किया है, मैंने रिक्रिएट किया है आपकी बात को। एक तो ये बात होनी चाहिए, और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप जब सेल करते हैं तो वो उसका लोकेल, उसका बनक, उसके आदमी का लहजा सब बदल जाता है। काफका को या दोस्तोयेवस्की को या शेक्सपियर को, जिसको भी हमने पढ़ा है, रशियन लिटरेचर को अगर आपको रशियन नहीं आती तो आप ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ते हैं। अब उसमें कितनी स्वीटनेस है, उसमें कितना नया कुछ हुआ है, ये तो ट्रांसलेटर की जिम्मेदारी है। ये वैसे ही है कि सास ने जो रेसिपी सिखाई है बहू ऐसा नहीं बनाएगी, मसाले चाहे जितने वैसे डाले, ऐसा मुझे लगता है। मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ कि अगर हम आई बिलीव कि अगर इफ द ट्रांसलेशन इज गुड, और अगर वो ट्रांसलेशन अपने ही स्ट्रेंथ पे खड़ा है, देन इट्स अ गुड ट्रांसलेशन। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो रिक्रिएट कर रहा है। अगर वो खराब भी कर रहा है तो वो अपना वजूद दिखा रहा है कि मैं इसी पायदान पे हूं, मैं छू नहीं पाया। और अगर वो बढ़िया कर रहा है तो वो उसी के बराबर के मेयार पे खड़ा है। कभी भी ट्रांसलेटर को ट्रांसलेशन को लेकर के अपने को सबड्यूड ढंग से बात नहीं करनी चाहिए, ना उसके लिए कहना चाहिए। गुलजार साहब के साथ तो होगा ही। वो ठीक है, वो ठीक है। हालांकि कभी कभी पोस्टमार्टम अच्छा खासा हो जाता है, अब हम बोलेंगे नहीं कब हुआ तो गुलजार साहब ने चांद के ऊपर बहुत लिखा है। आई थिंक दैट इज माई कनेक्शन विद हिम, ही इज एज मूनस्ट्रक एज आई एम। सो वेदर इट इज बंदनी जिसमें उनका पहला गाना था मोरा गोरा अंग ले ले, वेदर इज चांद चुरा के लाया हूँ चल बैठे चर्च के नीचे,
और मैं चांद निगल गई दैया रे, वो तो उफ, क्या गाना था। तो हम चाहेंगे आयुष, वो आप पहले बंदनी ही खाली सुनाइए, आंधी का नहीं, सिर्फ बंदनी। ये गुलजार साहब ने पहला गाना लिखा था। बदरी हटा के चलना, चुपके से भागे चलना। बदरी हटा के चलना, चुपके से भागे चलना। तोहरा लागे भरी मुस्काई दी जलाई की। मेरा गोरा अंग नहीं दे, मेरे शाम रंग दे दे। छुप जाऊंगी रात ही में, मेरे पीता संग दे दे। बदरी हटा के चंदा, चुपके से झाके चंदा, तोहे राहु लागे बैरी। कभी किसी ने चांद को इस तरह से श्राप दिया है? और वो उनका पहला गाना था फिल्म में। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बार? मैं कुछ बदमाशी करना चाह रहा था। हालांकि गुलजार साहब का बहुत एहतराम करते हुए, हम नए राइटर्स की, पोएट्स की एक समस्या ये है, गुलजार साहब चांद को कैप्चर कर चुके हैं, शाम को कर चुके हैं, बारिश को कर चुके हैं, नींद कर चुके हैं, सपने कर चुके हैं, आंसू कर चुके हैं। अब हम लोग जब पोएट्री लिखने बैठते हैं तो सायास डेलिबरेटली ये कोशिश रहती कि चंद्रमा ना आने पाए, शाम ना आने पाए, पहाड़ ना आने पाए, पतझड़ ना आने पाए, बारिश ना हो। अब पता चला कि आपने अगर कर दिया, आपकी ओरिजिनल थॉट में बात आ रही है, तो क्या होता है, अरे गुलजार को कॉपी कर रहा है, अरे गुलजार साहब का चेला है तो उसी तरह का तो लिखेगा। मतलब नए लोगों के लिए ज्यादा चैलेंज है कि साहब सारी दुनिया तो इन लोगों ने कायनात बटोर ली, जो काम किया शाहिर ने किया, शैलेंद्र ने किया, मजरू ने किया, उसके बाद गुलजार साहब, जावेद साहब झाड़ू लगा गए हैं। अब नए लोग क्या करें? अब इस कायनात में दूसरा चंद्रमा है नहीं, दूसरा सूरज है नहीं, बारिश पर मौके पे होगी ही होगी, आंसू निकलेंगे ही निकलेंगे। और यही होता है कि व्हाट्सएप इंडस्ट्री में इतना कूड़ा भरा हुआ है, जिसके पास जो है बेचारा अपने नाम से कर नहीं पाता तो गुलजार साहब के नाम पे, जितना बच्चन ने नहीं लिखा बच्चन के नाम से। अब आप अगर मुझसे कहें कि अभी तुरंत एक कविता लिख के बताइए कोई बड़ी रोमांटिक, तो अब बताइए, मेरे पास ये चैलेंज है कि मुझे चंद्रमा और ये सारी सिमली को दूर करके कोई दूर की नई कौड़ी लेके आनी है। ये मजाक की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो चीज जिसके नाम पे दर्ज हो गई फिर आप कर नहीं सकते हैं। आप वो काम करेंगे तो फिर, और ये काम मुझे लगता है गुलजार साहब को भी करना पड़ा होगा कि जब उनके दौर में काम उन्होंने किया तो उनको ये देखना पड़ा होगा कि डीएन मधोक ने क्या किया है जो नहीं करना है, गोपाल सिंह नेपाली ने क्या किया है, शकील बदायूनी ने क्या किया है। तो जो टाइम की टेस्टिमनी है जिसमें पोइट्री बहती जा रही है, आती जा रही है, कुछ चीजें कुछ लोगों के साथ इस कदर जुड़ जाती हैं कि जैसे किसी की, मैं खुद, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं रिव्यू करता हूं परमानेंट एक मैगजीन में, एक अखबार में, ज्यादा चंद्रमा आ गया, ज्यादा पानी बरस गया तो मुझे लगता है हटाओ यार, ये तो कॉपी कर रहा है गुलजार साहब का, चाहे बेचारा अपना ओरिजिनल थॉट क्यों ना लेके आया हो। You want to add something? No? एक और फिल्म उनकी है आंधी, राइमिंग विद गांधी, जो कि इमरजेंसी के मुंह पर एक तमाचा थी और पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में उन्होंने बात की थी, ऑल्दो ही इज नॉट सो पॉलिटिकल ओवरटली। तो उसका एक सीन है, उसमें भी चांद बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। आयुष, आ जाओ भाई, तुम भी ईद के चांद हो गए। आंधी सीन, उसमें देखिए जब ये बिछड़े हुए दो प्रेमी 9 बरस बाद मिलते हैं तो चांद को किस तरह से गुलजार साहब ने अपने शब्दों में ढाला है। दे आर नॉट
जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना? नौ बरस लंबी अमावस, चांद की भी बात हो गई और दोनों के आंखों में नमी भी थी। यतिन जी, आप आंधी के बारे में कुछ बताइए। आंधी के बहुत सारे मजेदार एनेक्डोट्स मेरी किताब में हैं, कुछ पॉलिटिकल है, कुछ नॉन पॉलिटिकल है। आंधी को लेकर के जो फिल्म बनाई उन्होंने, तो सुचित्रा सेन को उन्होंने साइन किया और उनको लगता था कि जिस तरह का जेस्चर चाहिए था और जिस तरह की एक प्रोटैगनिस्ट है और बहुत सेल्फ ड्रिवन औरत है, वो सुचित्रा जी हों। काली आंधी जो नॉवेल है कमलेश्वर का, उसको रीराइट किया गुलजार साहब ने और किताब फिल्म तैयार की। दिक्कत क्या हुई कि एक्टर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे आज के समय में जिसको मेथड एक्टिंग कहते हैं, जैसे आजकल धुरंधर है तो हर तरफ अक्षय खन्ना की तारीफ हो रही है, तो सुचित्रा सेन ने वो एक कैरिकेचर उठा लिया कि इंदिरा गांधी चलती कैसे हैं, बात कैसे करती है, उनके हाव भाव कैसे हैं, और उन्होंने उसको पूरा जक्सपोज कर दिया सीन में। जिस समय आंधी रिलीज हुई उस समय इमरजेंसी लग गई और एक कांग्रेस के नेता होते थे विद्याचरण शुक्ल, उन्होंने शिकायत कर दी जा करके कि साहब ये तो आपको डिमीन करने के लिए फिल्म बनाई गई है, तो ये हुआ कि इसमें बैन लग जाए। गुलजार साहब समझाते रहे कि इसका कोई मतलब नहीं है ये तो, और ये लोग मॉस्को गए हुए थे जिस समय फिल्म के ऊपर बैन की बात आई। तो जब फिल्म दिखाई गई तो पता चला कि साहब फिल्म में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो आप अगर आज भी देखें तो ये लगता है कि जिस तरह के हाव भाव और जिस तरह के पूरा बॉडी कॉनोटेशन है एक्ट्रेस का, वो इंदिरा जी की झलक दिखाता है। तो अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इमरजेंसी का मामला है, कुछ तो करना है क्योंकि आप ही ने वो बैन लगाया है, तो फिर उसको री एडिट करवाया गया और उसमें एक सीन पड़ा कि इंदिरा गांधी की फोटो लगी है और रहमान से वो बेटी कहती है कि मैं इनकी तरह बनना चाहती हूँ, मतलब मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ तो इंदिरा गांधी की तरह बनना चाहती हूँ। तो फिर फिल्म पास हुई, फिर फिल्म सुपर हिट हुई, उसमें दुनिया भर की चीजें हुई, फिल्म बहुत शानदार ढंग से बनी है और मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, वो एक शानदार मैच्योर लव स्टोरी है। तो उस वैसी लव स्टोरी गुलजार साहब दूसरी नहीं बनाए हैं और सत्या जी ने उस पर बहुत सुंदर काम किया है आंधी के ऊपर और तमाम और फिल्मों के ऊपर। उसमें एक जेके का जो कैरेक्टर है संजीव कुमार का, वो जिस होटल में जाके स्क्रिप्ट लिखते थे, जेके नाम का बैरा था जो उनकी बहुत सेवा करता था आकर के, हर दिन गुलजार साहब का काम करे, सब करे। तो गुलजार साहब रीझ गए उसके ऊपर, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम है जेके। तो बोले ठीक है, मैं और तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुमने मेरी इतनी सेवा की कि मेरे हीरो का नाम जेके होगा, तो उन्होंने जेके रखा। और जो इसका जो एंटी क्लाइमैक्स है, जो सबसे मजेदार वाकया है, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं कि जब सोनिया जी ने गुलजार साहब को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया, तो हम सब लोग विज्ञान भवन में मौजूद थे और गुलजार साहब को मिल रहा था। तो गुलजार साहब ने कहा कि देखिए कैसा समय आया है, एक समय था जब इस पार्टी ने मेरी फिल्म पे बैन लगाया था और आज ये समय है कि मेरे काम के लिए मुझे राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दे रहे हैं। और उसके बाद जो ताली बजी और जो सोनिया जी हंसी उस पर ठठाके, तो एक मजेदार, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, गुलजार साहब के अंदर जो विट है और जो टाइमिंग है वो किसी को छोड़ते नहीं है। वो मतलब उन्होंने वो अपना हिसाब चुकता किया उस समय आकर के। आप थी उस प्रोग्राम में? तो मुझे लगता है कि आंधी आप जाकर के देखें, आंधी का नैरेटिव जो है वो पॉलिटिकल है, लेकिन जो कहानी है जो पूरी तरह से असर करती है वो दरअसल एक शुद्ध
मैच्योर प्रेम कथा है, ऐसा मेरा मानना है। और गुलजार साहब से मैंने एक सवाल किया था जो मुझे लगता है कि हर क्रिएटिव पर्सन के लाइफ में आता है एक समय। मैंने कहा आपको कब लगा कि आप अमर हो गए सिनेमा इंडस्ट्री में? कब आपको ये महसूस हुआ कि अब आपका स्थान बन चुका है, अब आपको कोई हिला नहीं सकता? बोले बेटा, जिस दिन इस मोड़ से जाते हैं कुछ उस कदम रस्ते गाना रिकॉर्ड हो रहा था, और जिस समय लता जी ने आलाप लिया और फिर इस मोड़ से जाते हैं शुरू हुआ और मैं उसमें डबिंग रूम में बैठा था, उसको सुनने के बाद मुझे लगा कि गुलजार, अगर तुम्हें अब दोबारा कोई काम ना मिला तो भी तुम फिल्म इंडस्ट्री में जिंदा रहोगे। क्या बात है। I just want to add to what you said, Yatiti ji, that कल हम जा रहे थे हजरतगंज घूमने, आंचल और मैं, और एक बुक स्टोर विच इज़ अ ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल बुक स्टोर में इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी और केज तीनों दिख गए। तो मैंने दोनों उठा लिया और आंचल से कहा फ़ोटो ले लो, मैं गुलजार साहब को भेज दूंगी। तो मैंने भेज दिया वो फ़ोटो, और मैंने शायद आपको भी भेजा जी, और मिली को भी भेजा पेंगुइन में। तो गुलजार साहब का फ़ोन आया रात को। ही सेज, अच्छा कहाँ घूम रही हो? ऐसे मैं लखनऊ में हूँ, आपके पीठ पीछे हम आपके बारे में बात करने वाले हैं। तो ही सेड, ये कहाँ मिल गया? ऐसे दिख गया तो मैंने आपको भेज दिया। बिका नहीं होगा इसीलिए होगा। So his sense of humor, I tell you, is Amazing. spontaneous. You know? So अभी आपने जावेद साहब का भी नाम लिया, और we normally talk about both of them in the same breath. पर जैसे लखनऊ में कहते हैं ना कि किसी के बारे में आपको अगर नहीं कहना पर कह देना है, तो वैसे तो ये अब उनके बारे में क्या कहें, हमारे रिश्तेदार हैं। तो वही है कि अब जावेद साहब के बारे में, हम गुलजार साहब के बारे में क्या करें? जावेद साहब तो हमारे अपने हैं ना, लखनऊ के हैं, थोड़ा अपनापन उनसे ज़्यादा है। और आप सबको पता है कि जावेद साहब और गुलजार साहब बहुत करीबी दोस्त हैं, एक दूसरे को बहुत मानते हैं। उन्होंने गुलजार साहब ने जावेद साहब के बारे में भी कुछ लिखा है जो हम पढ़ेंगे हिंदी में और सत्या जी पढ़ेंगी अंग्रेजी में। मैं इसीलिए इसको पढ़वाना चाहती हूँ, because it is a humorous poem, and it really describes it beautifully. जावेद अख्तर साहब के ऊपर जो कविता लिखी है गुलजार साहब ने, वह यूं शुरू होती है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, बड़ा अच्छा लगा मिलकर, मेरी मदाह थी, एक फैन थी मेरी, वो मेरी शायरी की खूबियां पहचानती थी, मेरे मिसरे, मेरी तस्वीरें उसके दिल को छूती थी, मुझे मिलकर अचानक बौखलाने लग गई। बड़ी नर्वस हंसी हंसकर कहा, मुझे डर है मैं आपका नाम ही ना भूल जाऊं। बरालगीर होके मोबाइल पे एक तस्वीर भी ली, तस्वीर ले गई तो नाम लेकर शुक्रिया कह गई, और वो मेरा नाम न था। हमेशा से यही डर था कि वो कमबख्त मुझसे अच्छा लिखता है। उन्होंने बोला कि जावेद साहब शुक्रिया, लड़की ने। You want to read it in English? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. Actually, he had not given the title Javed Sahab before. We added it because लोग ने her poem का title तो ज़रूरत है. It felt so good meeting her, singing my praises. She was my fan. She understood the merits of my poetry, my imagery, my similes touched her heart. On meeting me, she was suddenly flustered. Laughing nervously, she said, I just might forget my own name. She took a selfie as she embraced me and left after thanking me, taking my name. That was not my name. This has always been my fear. That rascal writes better than me. वंडरफुल। यतिन जी, गुलजार साहब की भाषा में कई बोलियों का मिश्रण है, जैसे कि पंजाबी तो है ही, फारसी भी है, उर्दू भी है, एंड एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज आल्सो। तो ये आपके लिए और सदर जी आपके लिए भी किस तरह का लिंग्विस्टिक चैलेंज था? क्योंकि इन्होंने जैसे छैया छैया है, तो ये सूफियों के उस्तादों के मुखड़े लिए हैं और उसके बाद अपना पूरा गाना लिख दिया है, या जिहाले मिस्कीन है, कई से गाने ऐसे। इस पे पूरा मेरा चैप्टर है किताब में।
कोई अच्छी कविता अगर आप पढ़ते हैं या कोई अच्छा गीत सुनते हैं और उसमें अगर पूर्वज परंपरा की नुआंसेस नहीं पकड़ पाते तो वो बेकार और फ्लैट है। ये वैसे ही है कि कोई चीज आप खाते हैं और आप उसकी लज्जत को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्वाद आप ले चुके हैं या वैसा स्वाद आपको मिला नहीं है, तो आप कहते हैं भाई वाह, ऐसा शानदार खीर खाई नहीं थी। तो मुझे लगता है कि पोएट्री में लैंग्वेज की जो एक वो है नुआंसेस है वो आती हैं। उनके ढेरों गाने हैं, मेघला निशी भोरे मन जो कैनुम कोरे, रोज अकेली आए रोज अकेली जाए, चांद कटोरा लिए भिखारन रात, या अमाय डुबैली रे अमाय भैशैली रे, बांग्ला का वो है भटियाली है जिसमें गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे। पंजाबी में एक फ्रेज चलता है कनकानी जमिया निमाए, तो उस पे उन्होंने लिखा बादलों के सिट्टों जैसे बेटे हो जवां। तो गुलजार साहब ने लैंग्वेजेस को अपने तरह से अपने गाने में अपने इडियम में उतारा है। एक उनका गीत है जो बंदिशनुमा है, जो अभी रिलीज नहीं हुआ, फिल्म ही नहीं आई देवदास, गाना रिलीज हो गया यूट्यूब पे, कू 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 बोले कोयलिया, तो वो कहीं पुरानी परंपरा से निकल के आता है। या मार उडारी और तमाम सारे गीत जो गुलजार साहब करते रहते हैं। हमरी अटरिया पे आजा सवरिया, बेगम अख्तर का दादरा है जिसको उन्होंने पूरा इम्प्रोवाइज किया। छैया छैया बुल्ले शाह की नज़म से उठ करके आता है। बहुत सारे गाने ऐसे हैं, बोलूंगा तो पूरा लेक्चर हो जाएगा। गुलजार साहब को पकड़ने के लिए उनके उस छंद को समझना चाहिए, उस मीटर को, कि वो हमेशा पेयर वर्ड्स में बहुत काम करते हैं, कि वो राइम लाने के लिए उसमें बहुत तरह के एलिमेंट डालते हैं। और भाषा की जब बात करें तो आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे गाने में पर्सनल से सवाल डाल दे, लेकिन गुलजार साहब कर पाते हैं। या बेसुआदी रतियां और सजना, अभी आपने सुना होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे बांग्ला है, चाहे राजस्थानी फोक का केसरिया बालम आओ रे, पधारो मारे देश से, केसरिया नैनों की मत सुनिए और लाकड़ जल कोयला भाई, तो पूरी एक पीएचडी है जो आप कर सकते हैं इनके ऊपर। जो मजेदार बात वो है कि उस सारी भाषा को वो खुद के लिए अपनी पोइट्री के लिए मैनिफेस्ट करते हैं और उसके बाद उसकी डिलीवरेंस देते हैं। फिर एक होता है ना कि जो एक उस्ताद टाइप का आदमी होता है कि उसको पता है कि किस चीज से क्या काम बनने वाला है। मुझे याद है कि मैं गुलजार साहब के कमरे में बैठा था कि मैंने 10-12 साल उनको रिकॉर्ड किया। तो नया नया गाना लिखा था, बीड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर में बड़ी आ गया, तो मेरे सामने कागज रख दिया, तब तक गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि गुलजार साहब ने कहा देखो बच्चों, नया गाना लिखा है, विशाल की फिल्म में आ रहा है। हाथ का लिखा मैंने देखा तो अच्छा, उर्दू में लिखते थे तो उनकी जो फरहाना है वो हिंदी करके लाती थी। तो मैंने पढ़ा बीड़ी जलैले जिगर से पिया जिगर में बड़ी आ गए, तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, जब तक म्यूजिक के साथ ना आए, तो मैंने कहा गुलजार साहब ये बीड़ी अखर रही है। तो गुलजार साहब ने कहा बेटा यही कमाल करने वाली है, यही कमाल करेगी, ये होती है उस्तादी। और गुलजार इस प्रसंग से एक अवान्तर प्रसंग बताने जा रहा हूं। इस किताब में भी है। गुड्डी फिल्म रिलीज हुई और गुड्डी फिल्म सुपर फ्लॉप होने लगी, उतरने लगी पर्दे से। 3 दिन के बाद, तीसरा दिन था, तो ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार साहब और उनके साथ के सब टीम गई देखने। तो ये पता चला कि तो सुपर फ्लॉप हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, अपने प्रोड्यूसर से कहा कि मुझे एक कट करके एक गाना जोड़ना है। गाना क्या जोड़ा गया, और गाना रिकॉर्ड हुआ था वाणी जयराम की आवाज में, हरी बिन कैसे जीऊरी, जो कि एलपी रिकॉर्ड पे है। वो गाना हटाया गया, फिल्म में गाना डाला गया, आजा रे परदेसी मैं तो कब से खड़ी इस पार। मधुमती का गाना लता जी का एज इट इज जया जी पे फिल्मा दिया गया समीर भंज के इंतजार में। तो गुलजार साहब कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये मधुमती के गाना फिल्म को उठा देगा। बोले तुम चुप रहो, मुझे पता है पिक्चर कहां से उठानी है। और वो पूरा सीन हटाया गया, मधुमती का गाना डाला गया, जया बच्चन उस पर लिपसिंग कर रही हैं और हीरो का वेट कर रही हैं। और उसके बाद जब रिलीज हुई तो गुड्डी ने इतिहास रचा। तो गुलजार साहब मुझे बता रहे थे जब अपनी किताब लिखवा रहे थे कि बेटा मैं आज तक अपने गुरु का ये नुस्खा नहीं समझ पाया कि उन्होंने
ये तो पकड़ लिया कि ये फिल्म जा रही है, इसको डूबने से बचाना है, मधुमती का गाना ही इसको उबारेगा, ये केमिस्ट्री मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हम लोग टाइम तो हो रहा है, लेकिन हाँ, रैपिड फायर और ये जो आइटम नंबर्स होते हैं उनकी बात एक करते हैं। बहुत जल्दी से मुझे ये जानना है कि वो चांद निकल गई, नमक इश्क का, इसमें अक्सर लोगों ने मुझे बताया कि बहुत नुआंसेस हैं, ऐसा है वैसा है, थोड़ा थोड़ा अश्लील है। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन उनके गानों में छिछोरापन नहीं है, वेदर इट इज कजरारे और इट इज चांद निकल गई या बीड़ी जलाई ले। कजरारे में भी वो गालिब साहब को ले आते हैं बल्ली महाराज से, नदीबे तलक। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज ऐसी कि वो ये मैजिक कर जाते हैं? अश्लील कुछ नहीं होता, अश्लील आपका दिमाग होता है और अश्लील आपके देखने की दृष्टि होती है। हमारे यहाँ निर्गुण लिखा जाता है। एक गाना है, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल। सीधे सीधे मीनिंग ये है कि मेरे चुनरी में दाग लग गया है और अपने पिता से निगाह नहीं मिला सकती, ये अश्लील हो गया। गाना निर्गुण है, इस जीवन में दाग लगा है और परमात्मा से ना आंख नहीं मिला सकती, उस ससुराल जाना है तो कैसे अपनी कोरी चूनर लेके जाऊंगी, जिसके लिए कबीर कहता है कि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब गाना कोई लिखता है तो उसके बहुत सारे मेटाफिजिकल मीनिंग वीव करता है। अब किसी को चांद निगलने में या नमक डली खाने में अगर दिक्कत हो रही है तो फिर वो हो सकता है कुछ ज्यादा खतरनाक टाइप की ओटीटी की सीरीज देखता हो। मैं उसको बहुत ही पोएटिक सेंस में देखता हूं कि वो पोएट्री है। आप अपने बिलवेड को किस तरह से देखते हैं उससे समझ में आएगा। तो गाना या पोएट्री या कोई भी लिटरेचर का पीस अश्लील तो हो ही नहीं सकता अनलेस और अनटिल कि किसी एजेंडे पे, किसी को डिमीन करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, या थोड़े दिन का अपना कुछ लुफ्त लेने के लिए, इंस्टाग्राम की रील पे लाइक बढ़ाने के लिए, उस पे दिल उछलवाने के लिए आपने किया हो तो बात अलग है। बाकी गाली की कविता आपको की भी आप हंसी उड़ा सकते हैं और गाली की कविता से भी अपनी माशूका को खुश कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है गुलजार साहब के किसी गीत में, किसी कविता में मुझे अश्लीलता कभी दिखी नहीं। एक गीत है, हरी दिन तो बीता शाम हुई रात पार करा दे, और फिर वही बात 30 साल बाद आती है, मुड़ के ना देखो दिन भरों, उंगली पकड़ के तुमने चलना सिखाया था, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। अब बाप बेटी को दहलीज ऊंची पार करा रहा है। अब उसमें अब इसका बहुत खतरनाक भी कुछ बनाया जा सकता है। एक ग्रुप है जो बदमाशी करता है सॉन्ग वॉन्ग को लेके, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां की मौज बंजारा ले गया। अब बदमाशी करनी है तो बदमाशी करिए। खे मुकरियां लिखता था अमीर खुसरो, जिसके दो अर्थ होते थे, एक अश्लील निकलता था और एक बहुत शानदार होता था। तो ये सब पोएटिक गहने हैं, पहनावे हैं, खूबसूरती है। आपका दिमाग कितना साफ है इस पे सारा डिपेंड करता है कि आप किसी पोएट्री को, किसी पीस ऑफ आर्ट को कैसे सराहते। Well said. Satya ji, quick 2 questions with you. One is that what was Gulzar Saab's response when you read your first poem? Did he just smile and let you fly and say, "Chaliye Satya, chaliye bachcho kariye"? Well, I sent it to him over the email and he replied on the email. But when we met, one thing with Gulzar Saab, I mean, to answer one question which you asked earlier, is that he's reading all the time. Whenever you go to his office, which is in his house, there is a pile of books to be read. And I'm very happy once in a while I see one of my books there. And there is a pile of books that he has read, and if you open any book, there are marks. Line after line he has marked, which has With notes and everything. with notes, with side notes. He says, मैं किताब खराब कर देता हूँ. I said, आप उसकी भाव बढ़ा रहे हो, you know. So this is what it is. So he, he sat with me, and where I was wrong, he explained. When he liked something, he said, देखो मैंने इतने सारे exclamation marks डाल दिए. I said, इसका मतलब वाह है. तो मैं वाह नहीं लिखता हूँ,
कल भी उन्होंने कहा मुझसे कि आई एम डूइंग अ न्यू बुक विथ हिम, सो दैट्स योर आंसर. ही वाज हैप्पी विद दिस बुक, सो ही He's सेज doing another book. he's given me 215 poems. My hair is going grey. I had to color it before coming. But in that, you see the real Gulzar in those poems, because वो छुपे हुए कहीं से निकाला है उन्होंने. But which was the most challenging poetry of his that was difficult for you to translate? Now I'm finding, because there are many abstract ones where he talks about meeting age or meeting, traveling in the firmament. I mean, those are difficult to understand. The space poetry, to understand the layers of meaning and not make it superficial, is very, very difficult. But yes, I'm getting there. I'm understanding him better. We're looking forward to that. Yeah, I hope so. So both of you have worked with him. Has it helped you evolve as a person or as a writer? ऑफ कोर्स, लता जी से तमीज़ सीखी, अनुशासन, गुलजार साहब से भाषा की तमीज़ सीखी, और सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी जो मैं हर मंच से कहता हूँ. लता मंगेशकर से जब मैं कहता था कि आप बहुत अच्छी गायिका हैं, तो बोले अरे मेरा नाम मत लिया करिए, के.एल. सहगल का नाम लीजिए, नूरजहां का नाम लीजिए, शमशाद बेगम का नाम लीजिए, राजकुमारी जी का नाम लीजिए. जब मैं गुलजार साहब से कहता हूँ कि आप बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, तो कहते हैं कि अरे बरखुरदार क्या बात कर रहे हो, शैलेंद्र और साहिर के बराबर कोई लिख सकता है. जब मैंने गिरजा देवी पे काम किया, मैंने उनसे कहा कि अप्पा जी तुम बहुत अच्छी ठुमरी गाती हो. अरे बेटा, तुमने रसूलन बाई को नहीं सुना था, रसूलन बाई को सुनते तो मेरी ठुमरी नहीं समझ में आती. जब मैंने सोनल मान सिंह पे काम किया और सोनल मान सिंह से कहा कि आप बहुत बड़ी नृत्यांगना है, बोले तुमने रुक्मणी अरुणडेल को और यामिनी कृष्णमूर्ति को, बाला सरस्वती को डांस करते देखा है. तो मुझे ये समझ में आया कि ये सारे बड़े लोग, इन लोगों ने अपने एग्जाम्पल सेट ही नहीं किए. और ये कोई हम्बलनेस नहीं है, क्योंकि जिसके साथ आप 7-8 साल तक लगातार, आजकल के लड़के लड़कियां डेटिंग करते हैं, 3 महीने में सब नशा उतर जाता है और ब्रेकअप हो जाता है. 8 साल में आपकी कलई खुल जाएगी कि आप कितने असली और कितने नकली हैं. तो ये गुलजार साहब की जो बात है मुझे बहुत पसंद आई. और जैसे कहते हैं ना, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो मैं जब लिख रहा था तो बहुत उर्दू के अल्फाज ये वो सब बना रहा था अपना पूरा बिरयानी. तो एक दिन उन्होंने बड़े उससे कहा यतीन बेटा सुनो, ऐसा है, जज्बात होता है जज्बातों नहीं होता, ख्यालात होता है ख्यालातों नहीं होता. तो फिर मैंने एक उर्दू मास्टर लगाया, फिर अपना उर्दू ठीक किया, फिर वो सब क्या. तो कहने का मतलब है कि अगर आप सीखना चाहें तो आप शानदार ढंग से सीखेंगे, और आपको सिखाने वाले गुरु मौजूद हैं. और अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े 30 मार खां हैं, तो ठीक है, फिर आप रहिए हवा में, वो भी एक दुनिया है, उसमें आनंद आएगा. एक सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा. हम लोग एक बार, गुलजार साहब, एक फंक्शन खत्म हुआ नोएडा के क्लब में, हम लोग डायलॉग कर रहे थे, बड़ी भीड़ थी. फिर बाद में हम लोग गए ताज मानसिंह में खाना खाने, 4-6 लोग, गुलजार साहब में. गुलजार साहब ने कहा मुझे स्वीट डिश खाने का मन है, क्या है? तो साहब वो है फिरनी है. फिरनी आई, बहुत देर से फिरनी आई, तब तक उनका पेशेंस जवाब दे चुका था. फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए स्पून चाहिए. तो आजकल फैशन में छोटे स्पून भी चलते हैं, गोल्डन और वो बड़े आर्टिस्टिक और इतने बड़े उसमें की. तो जब वो स्पून ला के उसने बड़े नफासत से सर्व किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे देखा है स्पून. फिर कहते हैं कि इससे ग्राइप वाटर पीऊं कि खीर खाऊं. तो वो हड़बड़ा गया, फिर वो प्रॉपर स्पून लेके आए. तो गुलजार साहब इज फुल ऑफ लाइफ, लता जी वॉज फुल ऑफ लाइफ. ये सारे लोग बड़े हैं. और अगर कोई यहाँ यंग लड़का बैठा है, लड़की बैठे है, जो ऑथर बनना चाहता है या कलाकार बनना चाहता है, तो एक बात जरूर कहूंगा, अपने ऊपर शक करना सीखिए. आपने दुनिया का अंतिम सत्य नहीं कहा है. और ये देश अगर रामचरितमानस, रामायण, महाभारत और महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के नहीं बदला, तो आप कोई तीर नहीं मार रहे हैं, आप कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहे हैं कि आप खुद को बदल सकें. वो सबसे बड़ा काम है. आपके काम से कोई प्रभावित हो जाए, कुछ इंस्पायर कर ले, तो समझिए आपका लिखना बढ़िया है. नहीं तो आप सिर्फ पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और फालतू का पेड़ कटवा रहे हैं. बहुत शुक्रिया. आप कुछ कहेंगे गुलजार साहब की जर्नी? I will have to say this कि मैं काफ़ी हाई फ्लोइंग हिंदी स्कूल में पढ़ चुकी हूँ, फेल होते होते. बिकॉज वी हैड कबीर इन द ओरिजिनल, वी हैड बिहारी लाल के दोहे इन द ओरिजिनल. तो पढ़ चुकी हूँ, लिख चुकी हूँ. पर फिर मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया हैदराबाद, और वहाँ मेरी हिंदी की फुल
I started speaking like the Hyderabadis. और फिर मेरी जब शादी हुई यूपी वाले से, बहुत ही मैं घबरा गई. Yeah, so when I married him, और हम आए मेरठ में शादी के लिए और सब हिंदी में ब्यूटीफुल हिंदी में बात कर रहे थे. I said मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं हिंदी बोलती ही नहीं हूँ. I kept quiet. I never opened my mouth through that because मुझे लगा कि ये तो हंसेंगे मेरी हिंदी पे. अब thanks to गुलजार साहब, my husband is saying, वाह क्या हिंदी बोलती है आजकल तुम. So I think that is the biggest thing, that I have the acceptance of a UP wala for my Hindi. Well, that's so nice. जैसे हम लोग कहते हैं कि लफ्ज़ों की राह पर चलते चलते कभी कभी अपने आप से गुलजार साहब मुलाकात करा देते हैं, तो आप दोनों ने हम लोगों को गुलजार साहब से मुलाकात कराई. His unlit rooms, his silences, his pauses, and we're looking forward to your next book. So thank you so much.